Class 9th. Today we are going to start the first lesson in geography. The name of the book is Contemporary India Part 1, text book in geography for class 9th. So we are starting the first lesson, India size and location. Take a world map and mark all these continents: North America, South America, Africa, Asia, Europe, Australia, and then all the oceans: Pacific, Atlantic, Indian, Antarctica, and here there is Arctic Ocean, which is not marked, which cannot be seen in this in world map. And the most important thing in this world map is yellow color में एक country दिखाई दे रहा है, which is India. See. So we are going to study size and location of India. Study very properly, nicely and attentively, because all the question answers you have to do yourself. Only 2 answers I will tell you, and rest of the answers you have to do. इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस, मतलब एक ये बहुत पुरानी सभ्यता है इन द वर्ल्ड, और इसीलिए यहाँ पे क्या है, इट हैज़ अचीव मल्टी फेसेटेड, मतलब बहुत बहुआयामी सोशल इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से इसने काफ़ी प्रगति करी है पिछले 50 सालों में, 5 डिकेड्स. It has moved forward displaying remarkable progress, और काफ़ी प्रगति करी है in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. Location, कहाँ स्थित है ये? It is a vast country. Vast मतलब बहुत बड़ा country. Lying entirely in the northern hemisphere. ये पूरी तरह से northern hemisphere में है. See children, अगर इस वर्ल्ड मैप को देखो तो ये जो लाइन है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर. ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये तो 0 डिग्री वाला जो है ये इक्वेटर है. इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा ये, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. तो हमारा कंट्री जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, 0 डिग्री के ऊपर आता है. दूसरी बात, दुनिया में ईस्टर्न साइड पे आता है. क्यों? क्योंकि ये जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड जो है इसके ईस्ट में, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, तो ईस्टर्न पार्ट में आता है दुनिया के एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. कम अगेन, लोकेशन. The mainland extends between latitude 8 degrees 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north, and longitudes 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east. This I will explain you in the map of India, which is displayed on the next page. This also I will explain you on the next page. साइज कितना बड़ा है. लैंड मास जो है उसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. टोटल एरिया कितना है? 2.47% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया. नेक्स्ट पेज. Here is an answer coming up of answer number
India and the world. All this I will explain you on the next page. Just look at one answer. This is answer number 4. एक्सरसाइज का आंसर नंबर 4 है. उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया. तो आंसर इज फ्रॉम हियर. नंबर 1, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. द ट्रांस Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide strategic location to India. Number 1 point. Number 2, point wise लिखना है. Note that Deccan Peninsula protrudes into Indian Ocean, thus helping India to establish close contacts with West Asia, Africa, Europe from western coast and with southeast and Asia from the eastern coast. Number 3 point. No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has indeed. It is India's eminent position in Indian Ocean. So you will write in 3 points. Read nicely all this. कि इंडिया की लोकेशन की वजह से ही क्या है कि ये वेस्ट और ईस्ट के कंट्रीज से आराम से व्यापार कर सकता है, क्योंकि ये डेक्कन पेनिनसुला इसका इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करता है. इससे क्लोज कांटेक्ट है किससे? वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से. कोई भी और कंट्री की, तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी और कंट्री की इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं है जिसकी वजह से इसकी पोजीशन इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. नेक्स्ट पेज. See on this page we are going to study about extent and standard meridian. This is a very important page, and in this we will study about the location which is described earlier in the on page 1 and 2. So just see very properly, and this map, इस मैप को तुम लोगों को अपनी एक इंडिया के मैप पे भी ड्रॉ करना है, पूरा इसी तरह बनाना है. यू डोंट हैव टू मेक ऑल दीज. केवल ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ये वाला बनाना है. 82, दिस इज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट. ये वाली मेरिडियन है स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. अच्छा, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे क्या है, 68 डिग्रीज लोकेशन बताई है इंडिया की, विच इज 68 डिग्री 7 मिनट्स. एंड ईस्टर्न यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट. दोनों ईस्ट हैं. दिस इज़ ऑल्सो ईस्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो ईस्ट. क्यों? क्योंकि हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैं. फिर ये लॉन्गिट्यूड है, दिस एंड दिस इज़ ऑल्सो लॉन्गिट्यूड का डिग्रीज बता रहे हैं. एक्सटेंट बताया जा रहा है, और नॉर्थ में ये लैटिट्यूड है और साउथ में ये लैटिट्यूड है. तो नॉर्थ के लैटिट्यूड के डिग्रीज हैं 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और साउथ की डिग्रीज हैं 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ. ध्यान से सुनो, नॉर्थ. फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्रीज का अंतर है. और यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक ये भी रफली 30 डिग्रीज का एक्सटेंट है. यहाँ से यहाँ तक
कितने किलोमीटर्स हैं? 2933 किलोमीटर्स। और ऊपर से यहाँ तक कितना है? 3214 किलोमीटर्स लंबाई है इसकी। अब क्योंकि यहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है और यहाँ 2 घंटे बाद में निकलता है, धीरे धीरे ट्रैवल करता है इधर और यहाँ पे 2 घंटे बाद में निकलता है। उसी तरह यहाँ 2 घंटे पहले डूबता है और यहाँ 2 घंटे बाद में डूबता है। ऐसा क्यों है कि ऐसा क्यों है कि हमारे देश में यहाँ पर 2 घंटा पहले निकलता है और यहाँ 2 घंटा बाद में निकलता है, तब भी पूरे देश में एक ही सी घड़ियों में टाइम एक ही सा होता है। क्यों? क्योंकि इतना यहाँ से यहाँ तक करीब 30 डिग्रीज का अंतर है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ले ली है, जो एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमने ले ली है। देखो यहाँ पे लिखा है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट पर, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने ले ली है। इस पे जो टाइम सेट होता है वही टाइम हम पूरे इंडिया का रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज देखो, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, म्यांमार, इधर श्रीलंका है और 2-3 कंट्रीज़ अभी नेपाल है, और अभी 2 कंट्रीज़ और इसमें दिख नहीं रहे हैं, जो नेक्स्ट पेज पे इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ में दिखाई देगा। उसके बाद देखिए यहाँ अरेबियन सी है इस तरफ वेस्ट पे, और ईस्ट पे बे ऑफ बंगाल है। ये नीचे इंडियन ओशन दिखाई दे रहा है। हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान एंड निकोबार है। You have to draw this map. अब इंडिया के दूसरे कंट्रीज से, पूरे वर्ल्ड से बहुत पहले समय से, बहुत एंशिएंट समय से मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स थे, मतलब समुद्री रास्तों से कॉन्टैक्ट्स थे। और हमारे नॉर्थ में, ये यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत से, ये यहाँ पे बहुत से पासेस हैं हमारे यहाँ। पासेस हैं मतलब जो हमारे माउंटेन्स हैं उसमें जगह है थोड़ी थोड़ी, जिससे ट्रैवलर्स बहुत एंशिएंट टाइम से वहाँ से आया जाया करते थे। पासेस हैं माउंटेन्स में, तो जिसकी वजह से आइडियाज़ भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोग भी जाते थे, सामान भी जाता था, है ना। स्पाइसेस, मसलिन, मर्केंडाइज, ये सब जाती थी। देखो क्लियरली, देखो, है ना। Ideas of Upanishad, Ramayana, stories of Panchtantra, Indian numerals, decimal system could read many parts of the world. The spices, muslin मतलब मलमल का कपड़ा, and merchandise, other merchandise मतलब और तरह तरह के सामान इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाते थे। अब देखो यहाँ नेबर्स के बारे में बताया है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, तिब्बत, भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। सदर्न नेबर्स जो हैं अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड्स, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका जो है ये हमारे कंट्री से कैसे सेपरेट है, कैसे अलग है? 2 बाय अ नैरो चैनल सी फॉर्म बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। और मालदीव्स आइलैंड जो है साउथ ऑफ, ये देखो, ये लक्षद्वीप है, ये हमारे कंट्री का है, और ये जो दोनों सर्कल में हैं ये दोनों हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं।
ठीक है, तो ये इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ वाला मैप देख लीजिए बहुत ध्यान से। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये देखो थोड़ा ऐसे जगह से चिपका हुआ है इंडिया से, इसकी बाउंड्री। और फिर उसके बाद चाइना है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज़ भी दिखाना है एक मैप में। सो इन ऑल यू हैव टू ड्रॉ 3 मैप्स, एक वर्ल्ड का और 2 इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पे एक्सरसाइजेस साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तुमको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है, यू हैव टू डू इट। ये मैप में करना है। थर्ड का आंसर हम अभी एक फ़ोटो भेज देंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 3 की, और ये आंसर नंबर 4 हमने मार्क करवा दिया है। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस। ये तुम्हारा, ये पहले इसके आंसर्स लिखना सारे के, क्वेश्चंस इसी तरह उतारिएगा और आंसर्स लिखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो ये इसका आंसर क्या हुआ, इसके आंसर इसके जस्ट नीचे लिखना। अरेबियन आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया इन अरेबियन सी का आंसर है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल वाले का आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, उसके बाद जो मैप लेंगे, इंडिया का मैप लेंगे, उसमें तुमको लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार दिखाना होगा। देन कंट्रीज, don't do on the map, just write the answers below the question, okay, below the question. Then एक इम्पॉर्टेंट बात तुम लोगों को नहीं बताई, अभी दिखाते हैं। सी, यू हैव टू मार्क दिस ऑल्सो। यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा है, कितने पे है, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे है। इट रफली डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 हाफ्स, ये और ये रफली डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 हाफ्स। और उसके बाद इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से प्रदेशों से होकर गुजरता है। कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा। तो ये मैथ स्किल्स में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तुमको इसमें से देख के लिखना होगा। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, वी हैव completed the lesson and you have to do it in your copies. So thank you for today.